Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing great. So if you are new here, don't forget to subscribe for more helpful content. I have already uploaded 9 parts of this PYQ series. If you haven't watched the previous parts, check them out. The links are in the description. So today we are moving on to part 10 of this PYQ series where I'll cover more important PYQs. Also, I have special resource to share with you. So stay tuned till the end and make sure you join my Telegram channel जिसका नाम है Study Sociology. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. These are the images of my Telegram channel. तो आप देख के ज्वाइन कर सकते हो. Alright, so let's begin with today's first question, that is question number 118. Which of the following statements accurately describe Louis Althusser's theory of ideological and repressive state apparatuses? Option A, ideological state apparatuses, ISAs, function through institutions like religion, education and media to maintain dominance. Option B, RSAs enforce control through legal and military institutions. Option C, both ISA and RSA work independently without influencing each other. Option D, ISA use coercion as their primary means of maintaining control. आपको इन ऑप्शन से आंसर करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. The correct answer is option C, that is both ISA and RSA works independently without influencing each other. So Althusser distinguishes between ISA that shapes ideology and repressive state apparatuses that enforce control through law. All right. Question number 119. Who coined the term standpoint theory? Option A, Dorothy Smith. Option B, Patricia Hill Collins. Option C, Kimberly Crenshaw. Option D, Nancy Fraser. Standpoint theory किसने coin करी थी सबसे first time? The correct answer is very easy question. That is A, Dorothy Smith. So through standpoint theory, she argues that knowledge is shaped by social position, particularly the experiences of the marginalized groups. Question number 120. According to Pierre Bourdieu, cultural capital exists in which of the following forms? Option A, embodied cultural capital, which includes habits, skills and dispositions. Option B, objectified cultural capital, which refers to material objects like books and paintings. Option C, institutionalized cultural capital, which includes academic qualifications and credentials. Option D, economic capital, which represents monetary wealth. आपको इन ऑप्शन से आंसर करना है. नीचे कोड्स दिए हुए हैं, इन कोड्स से बताइए कौन सा करेक्ट कोड है. इस बार क्वेश्चंस थोड़े टफ लाई हूँ मैं. अभी तक हम लोगों ने बहुत इजी क्वेश्चंस करे हैं. क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर दीजिए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज A, B एंड C. देखो, एम्बॉडीड कल्चरल कैपिटल उनका था, ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चरल कैपिटल. देखो, डिस्पोजिशन उनका कीवर्ड है, एकेडमिक कीवर्ड है, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स. इकोनॉमिक कैपिटल की वो बात नहीं करते हैं. Question number 121. Which of the following features are central to Manuel Castells' concept of network society? Option A, the shift from industrial production to information-driven economies. Option B, the decentralization of power structures through digital networks. Option C, the elimination of social inequality due to increased digital connectivity. Option D, the rise of global networks shaping politics, economy and culture. मैनुअल कैसल का नेटवर्क सोसाइटी थ्योरी से क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 121. एक्चुअली इसमें कोड्स होने चाहिए, तो अब विजिबल है. यहाँ पे कोड्स हैं, आपको इन 4 ऑप्शन में से आंसर देना है. Question number 121. The correct answer is option 4, that is A. कह रहा है the shift from industrial production to information driven economies. B कह रहा है the decentralization of power structures through digital network. And option D,
राइज ऑफ ग्लोबल नेटवर्क, वेरी इजी क्वेश्चन. और सोशल इनइक्वालिटी को एलिमिनेट कहाँ करता था डिजिटल नेटवर्क? सोशल इनइक्वालिटी तो उसकी वजह से आई थी ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 122. ये जो टर्म है डिसएन्चैंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, मिशेल फुको. आपको डिसएन्चैंटमेंट अगर पता है, ये कीवर्ड है, किसने दिया था, तो आपको आंसर पता होगा. द करेक्ट आंसर इज option A, that is Max Weber. So through disenchantment of the world he refers to the decline of religious and magical things जो हमारे modern rationalized societies में होते थे. मतलब हमारा जो modern rationalized society था उसमें कैसे decline आया था religious और magical thinking, spirituality में. Question number 123. Which of the following ideas are central to Michel Foucault's theory of power and knowledge? Power and knowledge की theory से question है Michel Foucault की. Option A, power is diffused throughout social institutions rather than concentrated in single entity. Option B, knowledge and discourse shape what is considered true in a society. Option C, power operates solely through legal and governmental institutions. Option D, power is productive and creates new forms of social relations rather than just restricting individuals. आपको मिशेल फुको के बारे में पता है कि उन्होंने किन किन चीज़ों पे काम किया है, तो आपको इसका आंसर पता होगा. क्वेश्चन नंबर 123. द करेक्ट आंसर इज, चलो पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है पावर इज डिफ्यूज थ्रू आउट सोशल इंस्टीट्यूशंस रादर दैन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी कह रहा है नॉलेज, देखो नॉलेज एंड डिस्कोर्स उन्हीं का ही है, करेक्ट. ऑप्शन सी सोली नहीं, लीगल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस पे ऑपरेट करती है, गलत है. डी कह रहा है इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएट्स न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस रादर दैन जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग, ये भी करेक्ट है. दैट इज ए, बी एंड डी. हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. Question number 124. Which of the following statements are true regarding the Frankfurt School's critique of mass culture? A. Mass culture is used by dominant class to manipulate and control the masses. Option B. The culture industry turns art into a commodity, stripping it of its critical potential. Option C. Mass media promotes resistance against capitalist ideologies. Option D. The Frankfurt School viewed popular culture as a tool for enlightenment and individual autonomy. आपको इन कोड्स में से आंसर देना है. मैं जूम आउट कर दे रही हूँ ताकि विजिबल हो क्वेश्चन. ये 3 पॉइंट्स इधर हैं और 1 पॉइंट इधर है, और ये आपके कोड्स हैं. इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 124. द करेक्ट आंसर इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. ऑप्शन 2, दैट इज़ ए कह रहा है मास कल्चर इज़ यूज बाय डोमिनेंट क्लास टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल मासेस, करेक्ट. ऑप्शन बी, द कल्चर इंडस्ट्री, देखो कल्चर इंडस्ट्री फ्रैंकफर्ट स्कूल का कीवर्ड ही है, टर्न्स आर्ट इनटू कमोडिटी, स्ट्रिपिंग ऑफ इट्स क्रिटिकल पोटेंशियल. इन्होंने प्रमोट नहीं किया था रेजिस्टेंस अगेंस्ट कैपिटल आइडियोलॉजीज. फ्रैंकफर्ट स्कूल व्यूड पॉपुलर कल्चर एज टू, बिल्कुल भी नहीं. फ्रैंकफर्ट स्कूल और एनलाइटनमेंट इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 125. एक मिनट. सो बेसिकली फ्रैंकफर्ट स्कूल में, यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या हुआ था कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है क्रिटिसाइज्ड मास कल्चर एज अ टूल फॉर, क्या कह सकते हैं, एज अ टूल फॉर आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, टर्निंग आर्ट इनटू अ कमोडिटी. ये एक फ्रैंकफर्ट स्कूल का मेन रोल था, मेन क्रिटिक था.
Question number 125. Who introduced the concept of panopticism to describe modern surveillance? Very easy question. Option A, Michel Foucault. Option B, Jeremy Bentham. Option C, Carl Menahem. Option D, Anthony Giddens. किसने इंट्रोड्यूस किया था पेनॉप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट? द करेक्ट आंसर इज मिशेल फुको. जेरेमी बेंथम ने पेनॉप्टिकन का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, कॉइन किया था, पेनॉप्टिसिज्म नहीं. अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. थिंकर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट से हमको मैच करना है. कौन सा किसका है? एक सेकेंड. अच्छा, यहाँ पे कोड्स नहीं है, ऐसे ही वी हैव टू मैच. एंथनी गिडेंस, इमैनुअल वॉलस्टीन, यागन हेबरमास, डी नॉर्बर्ट इलियस. कॉन्सेप्ट्स में है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, कम्युनिकेटिव एक्शन, सिविलाइजिंग प्रोसेस. देखो, इमैनुअल वॉलस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, यागन हेबरमास ने कम्युनिकेशन एक्शन दिया है, नॉर्बर्ट इलियस का सिविलाइजिंग प्रोसेस और स्ट्रक्चरेशन थ्योरी एंथनी गिडेंस का है. दैट इज़ ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4. यहाँ पे भी एक और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. बुक्स दिए हैं और ये हमारे ऑथर्स हैं. द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, पावर एंड नॉलेज. ये थोड़े 2 ईजी क्वेश्चंस ऐड कर दिए मैंने, जबकि पेनॉप्टिकन का भी क्वेश्चन ईजी ही था. इमाइल डकाइम, अर्विंग गॉफमैन, एंथनी गिडेंस, मिशेल फुको. सारे मैच्ड ही हैं. रिलीजियस, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ इमाइल डकाइम की बुक है. प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, अर्विंग गॉफमैन. कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, एंथनी गिडेंस. और पावर और नॉलेज, मिशेल फुको. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 128. 128 कह रहा है, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैन and the impact of city life on individuality. Option A, George Simmel. Option B, Max Weber. Option C, Emile Durkheim. Option D, Robert Isra Park. The correct answer is option A, that is George Simmel. George Simmel ने metropolitan man की theory दी थी, जहाँ पे he explained that how urban life creates individuality. और उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है, और वो चीज़ ये मेट्रोपॉलिटन मैन की थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 129. हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट ऑफ कल्चर मॉडल इन कल्चरल स्टडीज़? ऑप्शन ए, स्टुअर्ट हॉल. ओके, ऑल राइट. यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट आंसर मेंशन्ड है. इसका सर्किट ऑफ कल्चर की थ्योरी थी स्टुअर्ट हॉल की. क्वेश्चन नंबर 133 का भी करेक्ट आंसर मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ पर. आई डोंट नो आगे भी मैंने मेंशन करे हुए हैं कि नहीं, लेट्स सी. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है, द आइडिया ऑफ, ओके लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि सर्किट ऑफ कल्चर में था क्या. सर्किट ऑफ कल्चर से ही एक्सप्लेन्स कि कैसे हमारे जो कल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे हम क्रिएट करते हैं, उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने सोसाइटी में ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें, और कैसे हम उसको उन कल्चर्स को इंटरप्रेट करते हैं. स्टुअर्ट हॉल इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं. देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है. डायलॉगिक कम्युनिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है मिकेल भक्तिन. क्वेश्चन नंबर 131. ऐसे देखते हैं, पता नहीं आगे मेंशन है कि नहीं ऑप्शन. तो 131 कह रहा है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, वन सेकेंड, हाँ, हु इंट्रोड्यूस द थॉमस थ्योरम which states that if men define situation as real, they are real in their consequences. Option A, W.I. Thomas and Dorothy Thomas. Option B, Irving Goffman. Option C, George Herbert Mead. Option D, Charles Horton Cooley. Question number 131. Very easy question. अगर थॉमस थ्योरम है तो इन्हीं से ही होगा, W.A. थॉमस एंड डोरोथी थॉमस.
तो द थॉमस थ्योरम स्टेट्स दैट जो परसेप्शन है, एक मिनट, जो दैट परसेप्शंस जो भी हमारे होते हैं वो शेप करते हैं रियल, लाइक वो शेप करते हैं हमारे जो भी सोशल बिहेवियर से कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उनको। तो डोरोथी स्मिथ और W.A. थॉमस ने थॉमस थ्योरम से ये एक्सप्लेन किया था दैट परसेप्शंस शेप रियल कॉन्सिक्वेंसेस इन सोशल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 132, आज का लास्ट क्वेश्चन। द टर्म डीप प्ले referring to symbolic and high risk social interactions was introduced by option A Clifford Geertz, option B Irving Goffman, option C Pierre Bourdieu, option D Talcott Parsons। डीप प्ले की थ्योरी किसकी थी? डीप प्ले की थ्योरी थी क्लिफर्ड गियर्ट्स की। ऑलराइट, सो हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। So before we end this video, I just want to remind you about the PDF I've created, which includes 1000 plus sociological thinkers and concepts. तो आपको यहाँ पे 1000 से ज़्यादा मिलेंगे सारे sociological thinkers and concepts. इट्स अ ग्रेट रिसोर्स फॉर जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि UPSC, नेट, JRF और एनी अदर एग्जाम. सो दिस PDF विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम. राइट नाउ यू कैन गेट इट एट अ 50% डिस्काउंट फॉर जस्ट ₹100. लेकिन ओरिजिनल प्राइस है इस PDF का 200. So if you are interested, just message me on Telegram. The link is there in the description box. Also, don't forget to like this video, share it with others, and subscribe to the channel for more helpful content. See you in the next video, guys. Thank you.